Hello everyone, good morning, how are you? Students, this is a toy fan and we are observing that these are the blades of the toy fan. You are also observing that these blades are at rest, they are stationary. Observe that blades, now we observe that the blades of the fan are in motion. They are moving, they are showing movement. So the movement of the blades of this toy fan are in motion. Like this you can observe various types of movement of different objects which are present in our surroundings. For example, we can observe that when air is blowing, the leaves or the branches of trees are also fluttering, they are also moving. The blades of the ceiling fan, cooler, etc. are also in motion. And the vehicles on the roads like motorcycle, car, cycle, truck, bus, etc. are also moving from one place to another place. So it means they are showing movement. It means they are in motion. And if these vehicles are moving from one place to another place, they are covering distances, lengths. It means today we will study an important chapter of class 6th science, that is 10th chapter, that is motion and measurement of distances. Yes students, today we will study this important chapter, that is motion and measurement of distances. Yes students, this is the 10th chapter, motion and measurement of distances, and this is the overview of this chapter, meaning these are the topics or subtopics which we study in this chapter. Those are motion, distances, methods of measurement used in ancient times and modern times, units of physical quantities, SI units, story of transport, routes of transport, means of transport, methods of measuring length of curved lines, correct method of measurement, types of motion, and examples of motion. So these are various topics and subtopics which we will study in this chapter. And after studying these chapters, we would be able to explain, to define, to describe, to give examples of various topics or questions. So these are the learning outcomes. इसका मतलब है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद में हम इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे, या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हम क्या सीखेंगे, वो है द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस चैप्टर. Those are, you would be able to describe motion and distances. You would be able to give examples of methods used for measurements in olden days and modern days. यानी आधुनिक समय में हम किस तरह की डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं, किस तरह से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कर रहे हैं, और पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में लोग किस तरह से मेजरमेंट करते थे. तो इन सब के बारे में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिवाइसेस का नाम लिख सकते हैं, किस तरह से पुराने टाइम में लोग मेजरमेंट करते थे और अब हम किस तरह की मॉडर्न डिवाइसेस को यूज करते हैं. तो ये चीज़ें हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे. देन यू वुड बी एबल टू explain international system of units. It means you would be able to explain about the SI units and other units of different physical quantities which are used internationally. And after that, history of transport. Transport जो है सिस्टम जिसमें चीज़ों को हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं, लेकर के आते हैं, या खुद एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. अगर हमें लंबी डिस्टेंस तय करनी हो तो हम पैदल चल करके
नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल है। और इस तरह इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स हैं, मोड्स हैं, उनको डेवलप करें। देन मेजर लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइंस। अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन दी जाए और स्केल वगैरह दिया जाए और बोला जाए कि इसकी लेंथ को हमें मेजर करना, तो बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं। लेकिन साथ में ही अगर हमें ये बोला जाए, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक एंट को देख रहे हैं जो कि एक शुगर का जो ग्रेन है उसको, पार्टिकल को लेकर के जा रही है। अब उसकी जो मोशन है एंट की, वो रैंडम मूवमेंट है, डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही वो, और उसकी जो लाइन बनेगी मूवमेंट की वो कर्व्ड लाइन होगी। अगर हमें उस कर्व्ड लाइन को, अगर हम उसको कलर कर दें जहाँ जहाँ से वो गई है, और उसके बाद में ये बोला जाए कि इस कर्व्ड लाइन को मेजर करो कि इसकी लेंथ कितनी है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन ये चैप्टर पढ़ने के बाद में हम इजीली किसी भी तरह की जो कर्व्ड लाइंस हैं उनमें कितनी लेंथ उस ऑब्जेक्ट ने कवर करी है उसको इजीली हम मेजर कर सकेंगे। देन यू वुड बी एबल टू डिफाइन वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस। डिफरेंट टाइप्स की मोशंस जो होती हैं उनको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमें ये बोला जाए कि फैन की जो मोशन है उसको किस टाइप में हम इंक्लूड करेंगे, तो हम इजीली कह सकते हैं कि इसकी जो ब्लेड्स हैं वो मूव करती हैं सर्कुलर पाथ में, तो इसको हम सर्कुलर मोशन का एग्जांपल कह सकते हैं। और साथ में ये जो फैन है वो एक ही अपनी ही एक्सिस पे, एक ही जगह पे मूव कर रहा है, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो रोटेशनल मोशन। So in this way we can give the definitions of various types of motions, and we would be able to give examples of different types of motion. अब अगर हमें ये पूछा जाए कि पीरियोडिक मोशन क्या होती है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, या रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है, तो हम इजीली उनको डिफाइन भी कर पाएंगे और उनके वेरियस एग्जाम्पल्स भी दे पाएंगे कि ये जो मोशन है वो इस टाइप की होती है और इसके एग्जाम्पल्स ये हैं। तो इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज द लर्निंग आउटकम। इट मीन्स दीज आर द थिंग्स वी विल स्टडी, वी विल लर्न आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज motion and measurement of distances. So there are three terms in this chapter, name, motion, measurement and distances. So हमें इस चैप्टर का जो नाम है उसके हिसाब से इसके जो नाम में 3 टर्म्स हैं उनका हमें पता होना चाहिए, उसकी मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोशन क्या होती है। It means when an object changes its position with time, it is said to be in motion. इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ में अगर अपनी पोजीशन को, अपनी प्लेस को, अपनी जगह को चेंज करता है, इट मीन्स इट इज सेड टू बी इन मोशन, या उसका जो मूवमेंट है उसी को हम कहते हैं मोशन। जैसे सीलिंग फैन अगर चल रहा है तो सीलिंग फैन की जो ब्लेड्स हैं उनको हम समय के साथ में देखते जाएं तो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हैं। जो ब्लेड्स हैं वो मूवमेंट को शो कर रही हैं और कह सकते हैं कि उनका जो मूवमेंट है उसी को हम क्या कहेंगे कि वो मोशन में है। द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इट्स मोशन। देन अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करना चाहें तो उसके डिस्क्रिप्शन के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक वो ऑब्जेक्ट जिसकी मोशन को हमें डिस्क्राइब करना है, और दूसरा एक ऐसा कोई भी पॉइंट जिसके रेफरेंस में हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ने मूव किया है, ऑब्जेक्ट में मोशन हुई है। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, या उसको हम कहते हैं द ओरिजिन। For example, if there is a tree, इस ट्री को हम देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इसी ट्री के सामने एक कार है, वो खड़ी है। जैसे मान लो कि हमने 10:05 पर देखा कि ट्री के जस्ट सामने एक कार खड़ी हुई है। उसके बाद में हम 10:10
8 मिनट पर फिर से ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि कार है वो ट्री के सामने ना होकर के अपनी पोजीशन उसने चेंज कर ली है। इट मीन्स यहाँ पे ट्री है वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट और द ओरिजिन, और जो ऑब्जेक्ट है वो है कार। तो यहाँ हम देखते हैं कि कार यानी जो ऑब्जेक्ट है उसने डिस्टेंस कवर की है, या कह सकते हैं कि उसने मोशन की है, उसमें मूवमेंट हुआ है। किसके रेफरेंस में, ट्री अपनी ही जगह है, इसी के पास में पहले कार खड़ी थी, लेकिन कार थोड़ी देर बाद में हम अगर देखते हैं तो कार ट्री के पास में ना होकर के उससे आगे निकल चुकी है या थोड़ी दूरी पे पहुंच चुकी है। इट मीन्स यहाँ पे इसके रेफरेंस में कार में मोशन हुई है। तो इस तरह से हम मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल the leaves or branches of trees are also flutter or they move due to blowing of air. If we observe the water in river, we can see that water in the river is also moving. If we dry clothes in sunlight, we can see that the clothes are also moving. If we see a seed after germination, it gives rise to a new plant, so that plant becomes a tree, and this also showing the growth movement at the same place. Our earth also moving at its axis, that is rotational movement. This is also revolving around the sun, so that motion is revolutionary motion. So in our surroundings, in our daily life, we can observe various types of motions. अगर मैं पढ़ाते समय अपने हाथों से एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ, या ये जो मार्कर पेन है इसको अगर हम देखते रहें तो इनकी पोजीशंस, हाथों की या मार्कर की जो पोजीशन है वो बार बार चेंज होती रहती है। तो ये भी क्या है, मोशन है। कुछ मोशंस ऐसे होते हैं जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, और कुछ मोशंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पे मूव करता है, अपनी ही जगह पे मोशन को शो करता है। सो इन दिस वे वी कैन describe, we can define the motion, and with the help of reference point or origin, that may be any stationary object or moving object, we can describe the motion of the object. Now the second term, that is measurement. मेजरमेंट का मतलब है किसी भी चीज़ को हम मापते हैं, उसका मापन करते हैं, उसका फाइंड आउट करते हैं कि उसकी मैग्नीट्यूड कितना है या उसकी वैल्यू कितनी है. इट मीन्स मेजरमेंट इज फाइंडिंग द वैल्यू और strength of a physical quantity. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड या उसकी वैल्यू या उसकी स्ट्रेंथ है, उसी को फाइंड करने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं मेजरमेंट. फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे मास है, जैसे डिस्टेंस है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है. इन चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं. सो किसी भी चीज़ का मास, इट मीन्स कोई भी चीज़ जिस चीज़ से मिलकर के बनी है, जैसे मान लो कि मार्कर ये प्लास्टिक से बना है, तो टोटल क्वांटिटी इसमें प्लास्टिक की कितनी है वो इसका क्या है, मास. इसका वेट क्या होगा, अर्थ इसके ऊपर जितना फोर्स अपनी तरफ लगाएगी वो इसका क्या होगा, वेट. तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, मास अलग है और वेट अलग है. मास का मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट इज कंटेंड इन दिस मार्कर, इट इज इट्स मास. बट ऑन दिस मास द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ इट वुड बी इट्स वेट. सो हियर अगर हमें ये पूछा जाए कि आपकी हाइट सेंटीमीटर में कितनी है, या इंचेज में कितनी है, या फिट में कितनी है, या मीटर में कितनी है, तो ये जो मीटर, फिट, इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एटसेट्रा आर द यूनिट्स. एंड
इन यूनिट्स की, ये क्या है, फिजिकल यूनिट्स हैं, और इन फिजिकल यूनिट्स की जो स्ट्रेंथ, इनकी वैल्यू, इनकी मैग्नीट्यूड, ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, इनकी वैल्यू कितनी है, दैट इज उसको हम, उसकी स्ट्रेंथ को हम पता कैसे लगाएं, उसको हम पता लगाने का जो तरीका है उसी को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट। इसके लिए मान लो कि हम स्केल लेते हैं और स्केल से हम मापते हैं कि हाइट कितनी है, और जो हम बताते हैं, जैसे मान लो कि हम यूनिट ले रहे हैं कि सेंटीमीटर में हमें बतानी है, तो हाइट इज द फिजिकल क्वांटिटी, और इस फिजिकल क्वांटिटी को की स्ट्रेंथ हमने मान लो कि पूछा गया है कि सेंटीमीटर में आपको बतानी है, तो सेंटीमीटर इज यूनिट, और यहाँ पे जो चीज़ हम बताएंगे वो उसकी क्या है, इस फिजिकल क्वांटिटी यानी इस यूनिट के साथ में हम इसकी बता रहे हैं वैल्यू, इसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, डिजिट में कितनी है, या इसको हम कह सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ, और इसी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं मेजरमेंट। ये हम डिफरेंट डिवाइसेस को यूज करके पता लगा सकते हैं। सो जैसे इफ़ मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो कि हाइट इज़ 170 सेंटीमीटर, इट मीन्स 170 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, 170 इज़ द मैग्नीट्यूड, और इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इन सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द स्ट्रेंथ, और इसी को हम किस तरह से पता लगाते हैं, किस तरह से हम मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं मेजरमेंट। सो मेजरमेंट इज फाइंडिंग द वैल्यू, मैग्नीट्यूड, द स्ट्रेंथ ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद में आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट मान लो ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, how far the A from the B, or how distant the object A from object B। या हम सिंपली कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है A और B, और A और B के बीच में डिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि दोनों के बीच में स्पेस कितना है, दोनों के बीच में लेंथ कितनी है। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इन दोनों के बीच में जो लेंथ है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस का सीधा सा मतलब क्या हो गया कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में कितनी दूरी है, इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। सो कि उनके बीच में कितनी लेंथ है उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो अब डिस्टेंस के हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो ए पे है, उसके बाद में वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है और बी पे चला जाता है, उसके बाद में वो अगेन चलता है, सी पे पहुंचता है। सो अब इस कंडीशन में अगर हमें पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस उनके बीच में कितनी होगी, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ए से बी तक के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है, फिर बी से सी के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है, अब मान लो कि हम इसको मेज़र करते हैं और फॉर एग्जांपल मान लो कि ये आता है 20 सेंटीमीटर और ये आता है 15 सेंटीमीटर। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस है वो कैसे, तो पहला तो हम अगर स्केल वगैरह लेकर के इसको इजीली मेज़र कर सकते हैं। तो मेजरमेंट का हमें पता चलेगा कि मेजरमेंट कैसे करते हैं। स्केल हमने लिया और जीरो को यहाँ पे हमने प्लेस किया और बाद में मेजर किया कि लास्ट डिजिट कितनी आ रही है यहाँ पे, तो उसको हमने देखा कि वो 20 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ से जीरो से हमने देखा और फिर 15 सेंटीमीटर आ रही है। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, या कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चला यहाँ गया फिर यहाँ से वहाँ गया, तो इसमें टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी है, तो उसको हम पता लगाने के लिए पहले ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो ये जो डिस्टेंस है ए टू बी है वो है 20 सेंटीमीटर, बी टू सी है वो है 15 सेंटीमीटर और टोटल डिस्टेंस है वो हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। सो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिस्टेंस है वो कितनी होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है, यहाँ ए से बी पे जाता है, बी से वो सी पे जाता है, और सी से वो फिर जाता है डी पे, और डी से चल करके फिर ए पे। तो ए टू बी, बी टू सी, देन सी टू डी एंड डी टू ए। डिस्टेंस, दिस इज 100 मीटर, दिस इज ऑल्सो 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर। इन दिस केस यहाँ से ऑब्जेक्ट चलता है बी पे, बी से सी, सी से डी, डी से ए अगेन। तो टोटल डिस्टेंस वुड बी 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। टोटल डिस्टेंस कवर्ड वुड बी 400 मीटर। ये क्या हो गई? डिस्टेंस। आगे की क्लासेस में हम एक और टर्म को पढ़ेंगे और उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। हालांकि ये टेक्स्ट में नहीं है अपने, फिर भी अपने नॉलेज के लिए कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि जब ऑब्जेक्ट शुरू में चलना स्टार्ट करता है उसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और एंड में जब रुकता है तो उसको हम कहते हैं उसका फाइनल पॉइंट। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होती है शॉर्टेस्ट, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट भी यही हो गया, यहाँ जाता है, यहाँ, यहाँ, और फिर वापस यहीं आ जाता है। तो इसकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुई? यहीं से चला और यहीं पे ख़त्म। तो क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस विल बी 0। एक और एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चलता है, वहाँ यहाँ जाता है और सी पे जा करके रुक जाता है। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस कवर वुड बी लेंथ ऑफ द पाथ। सो 100 प्लस 100, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 200 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हम पता लगाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दिस इज द नॉट, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। सो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट है वो कम होगा, या हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, और किस तरह से हम इन चीज़ों को, फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो स्ट्रेंथ वगैरह, उसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने का जो तरीका है वो क्या है आदि।